Hi guys, I hope you all are ready for today's session. Like all of you know, Harshal is going to join us today. So please, like always, start sending your questions, and yeah, we'll send him an invitation shortly. Just a moment. Question. So, just a moment. Let me pin a comment over here. Q&A with Harshal. Okay. So if you guys are ready, we'll send an invitation to Harshal. Yeah. The comment is pinned. Max, okay. Yeah. Let me look for Harshal and we'll get started. He's not here yet. So let's wait for a minute or two. And just to let you guys know, we are going to continue doing our live sessions with as many players as possible. Like you know, now we would have been in the IPL, but unfortunately it's not happening. So yeah, this is the best way for us to get connected to you guys and connect you all with our players. Let me try again if Harshal is around. Not yet. So Harshal will join us in a minute or two. अंसारी लेकिन आईपीएल कब से यार पता नहीं आईपीएल कब से हम सारे वेट कर रहे हैं और फिलहाल तो हम हर्षल के लिए भी वेट कर रहे हैं अनमोल पूछ रहा है व्हाट इज़ योर नेम ब्रो माय नेम इज़ सुमित आई एम द कंटेंट प्रोड्यूसर फॉर डीसी धमी वी वांट टू सी संदीप लामिछाने फिंगर्स क्रॉस ब्रो होपफुली संदीप लामिछाने विल कम एंड जॉइन अस सून just a minute I'll turn on this okay let me check if Harshal is here yeah I can see him who is coming next yeah we'll let you know hi Harshal how are you Hi, I'm good. How are you? I'm good bro good to see you Good to see you too, man. What's happening? all good bro nothing much is happening good to see the hair has hair have grown Yeah, I know. I did my own quarantine haircut, which was taking my trimmer and just going mad. yeah Now seems it's grown to be the back. best option for a lot of people nowadays That's the only option. What can you do? so what's happening with you how are you killing time Uh, Nothing much is happening. Pretty much the same things every day. Wake up around 9, 10. Uh, Drink coffee, laze yeah around a little bit. Uh, थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई and then eat wow lunch. Again, don't do anything in the afternoon. Watch a show or TV, whatever I want to do. Hmm. And then evening I go and train for hour and a half. फिर Wow. again वही वही routine कुछ नहीं करना है. There are not a lot of things you can do right now. So Right. Harshal, just to I'm interrupting you. yeah, UZ has been complimenting your hairstyle. thanks, buddy. I'm not on point as on Hmm. point as Yuzvendra Chahal, but I'm trying, buddy. Yeah, there's so much to learn from him. I think Oh, so he's much. killing it with his Instagram right. His hair, but even in the game, like even in the game, his hair is you can destroy him with your batting, but you can't destroy his hairstyle. It's just immovable. अच्छा हिंदी में बात करो भाई ठीक है हिंदी में बात करते हैं हम तो हर्षल हिंदी में बताओ आप क्या कर रहे हो आजकल और वर्क कैसे चल रहा है आपका वर्कआउट अच्छा चल रहा है क्योंकि इस टाइम पे इतने ऑप्शंस नहीं है क्योंकि लिमिटेड वेट्स हैं लिमिटेड इक्विपमेंट्स हैं तो जो भी आपके पास होता है उसी में आपको मैनेज करना पड़ता है अनफॉर्चुनेटली बट लाइक मेरे पास थोड़ी बहुत
एक्सपर्टीज है स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग की, तो मैं उस हिसाब से जो भी है मेरे पास इक्विपमेंट उनको यूज करके अपने वर्कआउट्स मैनिपुलेट कर सकता हूँ, एंड आई कैन ट्राई एंड गेट अ गुड वर्कआउट आउट ऑफ वॉट एवर आई हैव। ओके, दैट्स ग्रेट। और मोस्टली कॉफी कैसी चल रही है आपकी आजकल? कॉफी बढ़िया चल रही है भाई। कॉफी इज कीपिंग मी अफ्लोट। जब भी बोर होता हूँ एक कॉफी का कप ब्रू करता हूँ और फिर बैठता हूँ, कुछ पढ़ता हूँ या टीवी देखता हूँ या वॉटेवर जो भी करना है, पर एक कॉफी का कप तो होता ही है हाथ में। और कितने हो रहे हैं आजकल वैसे? यार ये ना बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर है, बिकॉज दिन के 5 कप तो कहीं नहीं गए यार। बट मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ी कम इंटेंसिटी वाली कॉफी बनाऊं, ताकि मतलब ओवरडोज ना हो जाए कैफीन का। राइट। हर्षल, कुछ क्वेश्चन लेते रहे बीच में हम। जी। अब यादव पूछ रहे हैं कि पॉन्टिंग सर से क्या अच्छी चीज सीखी आपने? हाँ, पॉन्टिंग सर से एक तो लीडरशिप के बारे में बहुत जो अमेजिंग चीज मैंने ऑब्जर्व करी है, वो है कि जब भी आप किसी टीम में होते हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होते हो, वो और आप लीड कर रहे होते हो, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप हर एक प्लेयर को या जो भी बंदा है उस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट, उसको इक्वल फील कराओ और उसको रिस्पेक्टेड फील कराओ। तो रिकी पॉन्टिंग में वो स्किल है लीडरशिप की, कि अगर आप खेल रहे हो, नहीं खेल रहे हो, अच्छा कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, वो आपको हमेशा फील कराएंगे कि आप एक इम्पोर्टेंट पार्ट हो टीम के। सो एक वो बहुत ही ब्रिलियंट चीज सीखी है मैंने उनसे। और दूसरा, बैटिंग में जो थोड़ी बहुत चीजें हैं जो जिन पे मैंने वर्क किया है उनके साथ, और बहुत माइन्यूट डिटेल्स हैं, छोटी छोटी डिटेल्स हैं, पर जिन जिन चीजों ने मेरी बैटिंग में काफी फर्क किया है। हम्म। और मोस्टली हमने ये भी देखा है नेट सेशन में यूजुअली वो बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं हर एक के साथ, मोर लाइक हम्म। कोचिंग थिंग। तो आई थिंक वो भी काफी प्लेयर्स को इंस्पायर करता होगा। बिल्कुल। वो कहते हैं ना कि द लीडर शुड बी द फर्स्ट ऑन द ग्राउंड एंड लास्ट ऑफ द ग्राउंड, और रिकी पॉन्टिंग डज दैट एवरी सिंगल डे। और जब मैं नहीं भी खेल रहा था, मतलब जब नहीं खेल रहा था मैं, उस टाइम पे भी ही यूज्ड टू फीड मी थ्रो डाउन्स। जब सबका काम खत्म हो जाता था, सब सारे लोग चले जाते थे ड्रेसिंग रूम में, ही यूज्ड टू कम एंड फीड थ्रो डाउन्स। तो वर्क एथिक एक बहुत ही ब्रिलियंट चीज है रिकी पॉन्टिंग की। राइट। वन ऑफ आवर फ्रेंड हैज थैंक यू आल्सो अक्षर पटेल। व्हाट अ ऑलराउंडर। बिग फैन ऑफ योर्स टू बडी। came to Harshal Bhai from Akshar Patel, our very own Akshar Patel. મજામાં ભાઈ, મજામાં ચાલે છે, લડીએ છીએ. Did you watch his live? It was I did bits and pieces, yes. amazing यार. अक्षर भाई, if you are listening to us, thank you. बहुत मजा आया यार आपको. Akshar Patel is equals to fun. Yeah. Harshal, Ferin Shah is saying, "I please talk in Gujarati." तो आप गुजराती में कुछ बात करना चाहोगे? બોલો, ગુજરાતીમાં કોઈ ક્વેશ્ચન પૂછશો તો ગુજરાતીમાં આન્સર આપીશ. Okay. और Tarun Sharma is asking, tell us about your favorite web series. फेवरेट वेब सीरीज? यार एक टीवीएफ की एक वेब सीरीज आई थी काफी टाइम पहले, सुमित व्यास और आई डोंट नो द फीमेल एक्ट्रेस, Okay. इनकी परमानेंट रूममेट्स करके, दैट वाज प्रीटी गुड, इट वाज वेरी 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 फनी, बहुत मजा आया था वो देख के। ऑफ द टॉप ऑफ माय हेड ये है, अगर Okay. किसी ने नहीं देखा है प्लीज गो एंड वॉच। Starting with me. या Uh, અક્ષય પટેલ, તમને અમદાવાદ ગમે કે હરિયાણા? ભાઈ હરિયાણા કામ માટે ગમે, અમદાવાદ તો ઘર છે, અમદાવાદ થી સારું કશું નથી. काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं. We'll keep pausing for questions, Harshal, because आज या जितना ज्यादा से ज्यादा हम फैंस के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, हम आज कोशिश करेंगे. बिल्कुल। BJB is asking a question. एक तो इंस्टाग्राम हैंडल्स आते हैं, तो बहुत सी बार हम उनका नाम नहीं जान पाते जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं. हम्म. Saying Lehli is liveliest pitch in India.
Do you think we have more such pace-friendly wickets in India? आई थिंक नॉर्थ में तो बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे पेस फ्रेंडली विकेट्स हैं, स्पेशली जब आप रेड बॉल क्रिकेट खेलते हो विंटर में। और विंटर में आपको पता है नॉर्थ में ठंड ज्यादा होती है और वेदर भी थोड़ा ग्लूमी सा होता है, सनलाइट इतनी नहीं होती, तो कई बार आपको काफी मॉइस्चर मिलता है शुरू शुरू में विकेट पे, क्योंकि सनलाइट इतनी नहीं गिरती तो सूखता नहीं है विकेट। तो बहुत सारी पिचेस है नॉर्थ में जो लाइवली होती है शुरू में। बट आई थिंक एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर आप कंटिन्यूअसली ग्रीन विकेटों पे खेलते रहोगे तो वो एज अ क्रिकेटर आपके डेवलपमेंट के लिए देयर है लाइवली पिचेस एंड फ्लैट पिचेस एंड टर्निंग पिचेस एज वेल। Yeah. की screen freeze दिख रही है वैसे। आई कांट हियर यू। अब आ रही है? Can you hear me now? Yeah, I can hear you, bro. हाँ, आई कैन। ओके। हेलो। Yes, Harshit. या Yes, bro. या वो सुना था कि फ्रीज हो गया था तो लास्ट क्वेश्चन। सुना मैंने, थोड़ा सा फ्रीज हो गया था, अच्छा बट या नाउ। अच्छा। या बेसिकली मैं ये कह रहा था कि लाइव पिचेस तो होती ही है स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, बट लाइव पिचेस का एक बैलेंस होना चाहिए। हर टाइम अगर आप लाइव पिच पे खेलोगे तो एज अ क्रिकेटर आपका डेवलपमेंट रुक जाएगा। तो लाइव पिचेस, फ्लैट पिचेस, टर्निंग पिचेस, सारे पिचेस पे खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ही आप एक हर सिचुएशन में आप परफॉर्म कर पाओगे। राइट। lot of people are asking favorite cricket player. फेवरेट क्रिकेट प्लेयर, somebody I really look up to एज अ क्रिकेटर अगर मैं बताऊं तो MS धोनी फॉर श्योर। फास्ट बॉलर, इस टाइम पे अगर मैं करंट फास्ट बॉलर्स की बात करूं तो शमी एंड जसप्रीत, डेफिनेटली टू ऑफ माय फेवरेट फास्ट बॉलर्स। एंड व्हेन इट कम्स टू रेड बॉल, ईशांत फॉर श्योर। एंड अगर पहले बिफोर दिस बैच पहले के क्रिकेटर्स की बात करूं तो आई थिंक जहीर खान वाज माय फेवरेट बॉलर। Wow, no doubt about one of the best bowlers India has ever produced. For sure, for sure. And I've had the opportunity. Saurav is I was lucky enough के जब मेरा डेब्यू हुआ था आरसीबी के लिए 2012 में, जहीर भाई वाज द मेन पेसर उस टाइम पे। और मुझे याद है कि वो पूरा साल आई थिंक मैं 8 या 9 मैचेस खेला था, या 10 या 11 मैच खेला था। वो 10 11 मैचेस में मुझे याद है एवरी टाइम जब मैं डिफिकल्ट सिचुएशन में बॉल डाल रहा था, वो कवर्स पे या मिड विकेट पे खड़े रहते थे और वहां से भाग के हर बॉल पे आके मुझे बताते थे कि अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है। सो मेरी मेरी T20 बॉलिंग फिलोसफी उनकी फिलोसफी से काफी इंस्पायर्ड है। uh, Harshil. Saurav is asking you who's the fun. कैन यू हियर मी? I can hear you. हेलो। Did you hear my या question? सॉरी, क्वेश्चन क्या था? हाँ। Yeah, Harshil. Yeah. Who is the funniest in the dressing room? आप हरियाणा टीम की भी कर सकते हो इसमें। हरियाणा में तो भाई जब चहल खेल रहा होता है तो उसके साथ तो कंपेयर कर ही नहीं सकते आप कुछ। और डीसी में यार आईपीएल का ना एक थोड़ा थोड़ी इंटेंसिटी अलग होती है कि जब आप आईपीएल में ड्रेसिंग रूम में ना, जब एक बार मैच शुरू हो जाता है ना तो उतनी जैसे एनवायरनमेंट होता है ना वो थोड़ा मतलब काम 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 वाला एनवायरनमेंट होता है, थोड़ा हेक्टिक एनवायरनमेंट होता है। तो उस टाइम पे मुझे नहीं लगता कि कोई
nobody is looking to have fun. वो काम का टाइम होता है. पर यूजुअली यही यूजुअल सस्पेक्ट्स हैं. अपना अक्षर है, या अय्यर का भी कुछ ना कुछ चलता रहता है, या ऋषभ है ऑफ कोर्स. ऋषभ, पृथ्वी, इन लोगों का कुछ ना कुछ चलता रहता है. तो या Hmm. Nice. I versus Goa match. So ब्रो, यूर reminding you of that. Did my question get partial? नहीं, नहीं, आई कांट हियर यू. अभी ठीक है. अभी ठीक. आशीष बोल रहे हैं कि he met you हाँ. in गाजियाबाद versus गोवा अच्छा. चल रहा था तब. So he's just राइट. remind आई you of that. हाँ, 2017 आई थिंक. Okay. Piyush is ball or white ball cricket? If I had to pick only one, white ball. Okay. Can you read Akshar's comment? કેરમ રમવા જ્યુસ પીવાની મજા નહીં લાવી. વેરી ટ્રુ. અત્યારે કેરમ જ રમું છું ભાઈ હું. Yeah. Harsh, a lot of people are also मीत, asking मेरा नेटवर्क ठीक नहीं your है, आपका fitness ठीक schedule नहीं in है. this lock. पता नहीं यार, मेरा usually trouble देता ही है. So I've experienced it 2-3 times. यार. Usually trouble देता ही है, but अच्छा. I'm still trying to make this through, get through this, and cross my fingers कि ना हो खराब. Yeah, let's see. No. So fitness schedule is very simple. 4 days a week, I do strength work. और उसमें बहुत सारी चीजें. किसी दिन 2 सेशन होते हैं मेरे, किसी दिन एक सेशन होता है. तो जिस दिन हैवी स्ट्रेंथ सेशन है, उस दिन खाली स्ट्रेंथ पे फोकस होता है. और जिस दिन हैवी स्ट्रेंथ नहीं है, मैं ऑक्सिलरी वर्क कर रहा हूँ, उस दिन फिर मेरा कंडीशनिंग का भी सेशन होता है, जो भागने का सेशन होता है. तो ओवरऑल वीक में मैं 5 से 6 दिन ट्रेनिंग करता हूँ. Okay, nice. Just a minute, Harshal, I'm fetching in more questions. Akshar Patel Yeah. has started taking my case now. Yeah, I started teasing you. Akshar bhai, Akshar bhai 3-1. It's okay. You can take the point. Yeah, Mr. Yevle is Thank you, writing. buddy. Dhan- Hello. I can hear you now. Okay. 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 Location, Harshal? Maybe that helps. हाँ हाँ करो, बिकॉज बहुत लैग हो रहा है. Just a minute. Uh, थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा because I'm हाँ just getting into the balcony. So of crows and हाँ हाँ pigeons. ठीक है. Yeah. I हाँ ठीक है. okay. So हाँ, so we were talking about IPL now. पहले तो यार आई एम थिंकिंग के आईपीएल,
बिकॉज पूरे साल में वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट है ये, स्पेशली डोमेस्टिक प्लेयर के लिए. तो आई होप के आईपीएल हो जाए बिकॉज आई हैव बीन इन अ वेरी गुड फॉर्म, और आई वांट टू टेक व्हाटएवर आई हैव डन एंड bring it to domestic cricket and bring it to the IPL. So I hope, and I'm looking at it to happen. कब होगा कैसे होगा I don't know, पर I'm preparing in a way that IPL is going to happen. Right. अक्षर सिंह आप निकल जाओ, मैं आंसर पूछ लूंगा. अक्षर भाई आंसर नहीं, क्वेश्चन पूछना है. He is incredible. Yes. एक हर्षल, श्रवण इज ऑल्सो सेइंग हर्षल भाई आपका हेयर स्टाइल काफी अच्छा है. आज हेयर स्टाइल के बहुत कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं. भाई ये दिस इज बाय एक्सीडेंट, ये इसमें कोई मेरा हाथ नहीं है. दिस इज एंटायरली बाय एक्सीडेंट कि अच्छे लग रहे हैं बाल. लगने Do you think we are ready to win big teams on? sorry, what's the question? Can you hear me, Harshal? Do you think we are ready to win So, against them? do you think? Yeah. I think we have beaten CSK and MI on few occasions, and we are not a small team by any comparison. I think the amount of talent we have and the kind of balance we have now in the team, or even what we had last year, मुझे कोई डाउट नहीं है कि हम छोटी टीम है, and I think we can definitely beat any team that comes against us. Um, so it's always a level playing field, I think, when it comes to Delhi. Right. Uh, there's a huge Shreyas fan. He's asking, can you tell few words about Shreyas? Few words about Shreyas. Like I'm sure you already see him play, so you can figure out that he is a very confident person, and that is something that I noticed the first time I saw him. Okay, even when he was not doing well, he has been very good at projecting confidence. Uh, so I think that is something I have learned from him. और अगेन ही उसकी कैप्टनशिप में भी जब आई थिंक 2 साल पहले जब शुरू किया था उसने, देयर हैज बीन अ बिग डिफरेंस द वे ही इज लीडिंग द टीम. So I'm pretty happy playing under him. Yeah, it's a great atmosphere. I mean, everyone gets along really well. Yeah, We'll for sure. we'll speak more about IPL soon. Just one uh, to start with about your Ranji season. You know, your game has grown leaps Hmm. and bounds. Last year was, I believe, was your one of the most successful seasons so far in Ranji Trophy or Yes. overall domestic cricket. So, what went behind the preparations? I mean, how did you produce a season as good as that? Yeah. So the only thing I can say is from my process perspective, what I did behind the scene that enabled me to perform the way I did. और उसमें मेनली यही चीजें थी कि सबसे पहले तो आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि वेर आर यू लैकिंग, क्या चीजें हैं जो आप अच्छे से नहीं कर पा रहे हो और क्या चीजें हैं जो आप अच्छे से कर पाते हो.
और अगेन इट्स आइडेंटिफाइंग आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस, और उसके बाद एक बार आपने आइडेंटिफाई कर लिया इन चीजों को कि भाई, और देन यू पुट अ लिस्ट ऑन इन योर बुक कि इन इन चीजों पे मुझे काम करना है। एंड वंस यू हैव योर गोल्स इन प्लेस, एक बार आपने अपना गोल बना लिया, फिर आपको सोचना पड़ेगा कि हाउ हाउ डू यू गेट टू दैट गोल। वो, और देन अगेन यू क्रिएट अ प्रोसेस टू रीच दैट गोल। सो सबसे पहले आप एनालाइज करते हो, फिर आप यू फिगर आउट द थिंग्स दैट यू वांट टू डू, आप अपने गोल सेट करते हो, देन यू सेट द प्रोसेसेस टू रीच दोज गोल्स, और उसके बाद खाली काम करना रहता है और कुछ नहीं है। once you set the process, is all you need to do is follow that process and see कि उसमें कुछ ऊपर नीचे करने की जरूरत है, या कुछ बदलना है, कुछ ऐड करना है, कुछ निकालना है। एंड दैट्स प्रीटी मच इट। सो मेरे लिए कंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम था बॉलिंग में, तो मैं यही सोच रहा था कि हाउ डू आई मेक माई सेल्फ बोल दैट फोर्थ स्टंप वाली लाइन कंसिस्टेंटली। And I figured it out. My I did my analysis. I looked at my videos, and then I realized कि भाई ये रीजन की वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूँ। थोड़ा फिजिकल था, थोड़ा मेंटल था, इन सारी चीजों पे काम किया मैंने। एंड देन आई न्यू कि अगर मैं कंसिस्टेंटली वो लाइन पे बॉल डालूंगा तो आई आई एम गुड इनफ टू गेट एनीबडी आउट। सो सीजन के पीछे यही चीज थी कि मैंने अपनी स्ट्रेंथ पे आई डबल डाउन ऑन माय स्ट्रेंथ, और जो भी थोड़ी बहुत वीकनेसेस थी इधर उधर आई ट्वीक देम। एंड अभी भी बहुत सारी चीजें, देयर इज अ लॉट ऑफ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। और वो प्रोसेस कंटिन्यूअस है, जब तक आप खेलते हो तब तक आपको वो चीज करनी पड़ती है, इफ यू कंटिन्यूअसली वांट टू डू वेल। तो Right. या दैट वाज प्रीटी मच इट। I had a follow-up question, but before that, I think we'll have to stop for a fan comment. So, Kevin Patel, Harshal Bhai, I'm writing my questions 30 times. Why don't you give answer? So he had asked, remember me, Harshal Bhai, Happy Patel from Surat. Happy Patel, yeah. With him, junior cricket. He used to play for Surat. I used to play for Ahmedabad. So yeah, I remember him. Okay. Okay. Harshal, going back, you talk about following the process, always focus on the controllables, right? What's in your hand, you focus on that. So, what results? How sad for you, or let's say for any other person? It's very satisfying. See, कभी भी आप कोई नई चीज हो करना, और क्रिकेट मेरे लिए कोई नई चीज नहीं है। मैं क्रिकेट पिछले 10 साल से तो मैं प्रोफेशनली खेल रहा हूँ। तो जब आप कोई जब वो, जैसे कहते हैं ना कि वो आहा मोमेंट, तो Hmm. पिछले 1.5-2 साल मेरे लिए वैसे ही रहे हैं, वो आहा मोमेंट वाले, कि जब मैंने ये चीजें एनालाइज करनी शुरू करी, एंड देन आई फिगर्ड दीज थिंग्स आउट, और ये प्रोसेसेस मैंने डिजाइन करी, एंड देन आई फॉलोड दोज प्रोसेसेस, और फिर जब आपको रिजल्ट दिखते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें जो है ये 1 दिन 2 दिन 15 दिन 20 दिन में नहीं होती है। इट टेक्स पूरा 6 महीने 8 महीने 9 महीने 10 महीने का पूरा साइकिल होता है इन चीजों का। तो जब आप इतना टाइम इन प्रोसेसेस को फॉलो करते हो, और एट द एंड ऑफ इट ऑल आपको जब रिजल्ट मिलता है, इट्स वेरी वेरी सेटिस्फाइंग। देयर आर नॉट मेनी other feelings that I would chase. So becoming a better cricketer is something that I continuously want to do, and it gives me tremendous amount of satisfaction and pleasure. Right. Harshal, there's one very serious question. I don't know if you would want to answer that. Chaitanya Bishnu is asking, which shampoo do you use? Yeah, I'll tell you, buddy. I'll tell you which shampoo I use. He's my teammate from Haryana. Okay, Yeah. great. Nishu is asking, आपने आपकी पेस कैसे इंक्रीज की? सो पेस इंक्रीज करने के लिए एक जेनेरिक चीज मैं बता सकता हूँ, इज टू गेट फिटर। अगर आपकी फिटनेस जिस लेवल पे होनी चाहिए उस लेवल पे नहीं है, तो खाली आपकी फिटनेस बेटर करने से, आपकी रनिंग एबिलिटी बेटर करने से, आपका रनअप बेटर करने से, मेरे हिसाब से प्रॉब्ली 3 से 4 किलोमीटर का फर्क आपकी पेस में पड़ सकता है। और दिस इज अ सिंपल आंसर, बट
if you want to complicate it, इसमें बहुत सारे moving pieces है. Pace is something that's जिनके पास नेचुरली होती है, बट जिनके पास नेचुरली नहीं होती है, वो चीज बिल्ड करने के लिए यू नीड अ लॉट ऑफ मूविंग पीसेस टू बी पुट इन द राइट प्लेस. Right. So it's not an answer I can give in like 5 minutes or 10 minutes. Right. Uh, Harshal, also a important question because you have been playing different forms of cricket, whether it's in our domestic or whether it's T20 cricket. So, how difficult it is to adapt from one format to other, and how quickly can you do that? या एडेप्टेशन का प्रोसेस मेनली मेंटल होता है मेरे हिसाब से, बिकॉज जैसे आप बॉल डालते हो और जैसे आप बॉल मारते हो, वो चीजें तो कभी बदलने वाली नहीं है, राइट? और ऐसा भी नहीं है कि आप ड्रास्टिकली अपनी टेक्निक चेंज कर लोगे T20 से सीधा टेस्ट क्रिकेट में. पर मेरे हिसाब से वो मेंटल चेंजेस है जो आपको करने पड़ते हैं. T20 में जैसे मैं एग्जांपल दूं कि भी इफ आई एम preparing for a T20 game, I'm more thinking about strategy, के field placings, what sort of variations I'm going to use, how am I going to package my over, कि 6 बॉल में कैसे पैकेज करूंगा so that the batsman को पता ना चले कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ. Right. So ये सारी चीजें, टेक्निकल चीजों पे ज्यादा ध्यान होता है. बट जब आप रेड बॉल की प्रैक्टिस करते हो, और सॉरी व्हाइट बॉल में एक इंटेंसिटी भी बहुत हाई होती है क्योंकि शॉर्ट गेम है और सारी चीजें बहुत जल्दी जल्दी हो जाती है, तो आपको प्रैक्टिस में भी वही इंटेंसिटी रखनी पड़ती है जो आप मैच में रखते हो. रेड बॉल में डिफरेंस ये है प्रिपरेशन में कि रेड बॉल में यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस. रेड बॉल खाली पेशेंस का गेम है. एक बार आपके पास स्किल है, पर स्किल उसको कंटिन्यूअसली एग्जीक्यूट करने के लिए और बैट्समैन को परेशान करने के लिए आपको पेशेंस चाहिए. तो जब आप रेड बॉल की प्रैक्टिस करते हो, तो आप प्रैक्टिस में कंटिन्यूअसली सेम चीज ओवर एंड ओवर करनी पड़ती है आपको. तो मेरे हिसाब से यही डिफरेंस है दोनों फॉर्मेट के प्रिपरेशन में. और बस बाकी तो जो बहुत सारी चीजें होती हैं एडेप्टेशंस, वो नेचुरली हो जाते हैं क्योंकि आप इतने टाइम से क्रिकेट खेल रहे हो. राइट. हर्षल, इसी पे कुछ कंटिन्यूड क्वेश्चंस हैं. रुचि is asking, Ruchi, what is the secret of your improved batting last season? Again, I figured out कि मैं कैसे खेल सकता हूँ और कैसे नहीं खेल सकता. और जैसे मैं खेल सकता था, जो चीजें मैं अच्छी करता था, जैसे शॉट मेकिंग, मेरे कुछ एरियाज हैं जिन एरियाज में मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, और मुझे पता है कि मेरा एग्जीक्यूशन लेवल बहुत अच्छा है उन एरियाज पे मैंने बहुत वर्क किया. और जिन एरियाज पे मैं अच्छा नहीं हूँ, वो एरियाज को मैं कैसे एडजस्ट करूँ ताकि मैं जो पहले 15 रन, 20 रन, 22 रन, 30 रन के आसपास बनाता था, उनको मैं 40, 45, 50, 60 के आसपास ले जा सकूं. मैं अपना गेम, अपनी बैटिंग कैसे प्रोलॉन्ग कर सकूं, कितना ज्यादा टाइम क्रीज पे रह सकूं. तो ये दो चीजों पे मैंने काम किया है. और आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग दैट हैज हेल्प मी इज रेंज हिटिंग, के दैट गेव मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस दैट आई कैन क्लियर द बाउंड्री व्हेनेवर आई वांट टू. Okay. तो आई थिंक ये रेंज हिटिंग, और दूसरा लर्निंग टू प्ले लो रिस्क गेम, कि आपको सिंगल डबल कैसे निकालना है जब आप शॉट नहीं मार सकते, जब गेम की सिचुएशन डिमांड नहीं करती कि आप शॉट्स खेलें, उस टाइम पे आप कैसे खेलोगे. राइट. एंड हर्षल, इसी पे आपको एक कॉम्प्लीमेंट भी दिया है. सार्थक सिंगल इज, हर्षल, योर बैटिंग हैज लॉट ऑफ पोटेंशियल. सॉरी, हैज लॉट ऑफ पोटेंशियल. या इट हैज, आई एग्री विथ यू मैन. और मेरी हमेशा से मुझे ये लगता था, आई यूज्ड टू पुट सो मच प्रेशर ऑन माई सेल्फ के जितना टैलेंट मेरे पास बैटिंग में है, मैं आई एम नॉट डूइंग जस्टिस टू माई टैलेंट विद द बैट. एंड वो चीज हमेशा से मेरे दिमाग में रही थी. और डेफिनेटली एक दूसरी तरीके से अगर आप सोचते हो, तो आप
बेटर क्रिकेटर तभी बन सकते हो जब आप और ज्यादा वैल्यू ऐड करो टीम टीम में। और मेरे लिए टीम में और ज्यादा वैल्यू ऐड करने का तरीका बैटिंग का था, बिकॉज एज आई सेड मेरे पास काफी टैलेंट था। तो मैंने इन चीजों पे काम किया एंड एंड इट वर्कड आउट। राइट। हर्षल, मतलब बाकी क्वेश्चंस लेते हैं। आप हमको शायद आज कुछ दिखाने वाले थे। यू वांट ब्रू अ कॉफी फॉर अस Yeah, so asked me to brew while we're chatting? a cup of coffee live. Yeah, so I'll just show you a few things. Um, Okay. so this is my weighing scale. ये Hmm. है फ्लास्क है कॉफी का। और ये है हमारा हीरो। इसे कहते हैं पोर ओवर, V60 पोर ओवर। जो Okay. और ये पूरी पूरी की पूरी ये तीनों चीज की किट आपको मिल जाएगी समवेयर अराउंड 1500 रुपए में, इफ यू Hmm. गो टू एनी डिसेंट कॉफी शॉप। Okay. और एंड you need a kettle, electric kettle, Hmm. which you use to heat the water. uh, so अभी पानी गर्म हो रहा है। I'm gonna Okay. show you the Hmm. Yeah. जिसमें जिसमें आप कॉफी Yes, sir. डालते हो फिर पानी डालते हो एंड कॉफी कॉफी filters down into the flask. Hmm. So this is ready. Okay. One second. Yeah. So ये filters basically factory में बनते हैं like everything else. So you want to Hmm. wash it before you brew your coffee. So just Okay. pour some hot water on it, Hmm. and Hmm. now what we are gonna do is turn Hmm. on the scale, which Okay. is gonna show 0, and then you Uh, put your coffee in. ये okay. कॉफी आप ऑलरेडी ग्राइंड करी हुई खरीद सकते हो या बीन्स भी खरीद सकते हो। आई Hmm. यूजुअली लाइक टू बाय बीन्स क्योंकि वो फ्रेश होते हैं। Hmm. एंड so I have 20 grams of coffee with me, and I use 1 to 15 का रेशियो। so 1 ग्राम कॉफी के लिए 15 ग्राम पानी। and Okay. now I'm gonna pour water on this. Uh, काफी बाउंसर्स भी जाने वाले हैं ये वाले बट दैट्स ओके। हाँ, जिसको समझ आता है उसको ठीक है, नहीं आता है तो आप YouTube पे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स है देख सकते हो। बट आई थिंक दिस इज समथिंग जब मैंने डिस्कवर किया था कॉफी ब्रो करना, मुझे बड़ा मजा आया था क्योंकि मुझे चीजें अपने आप बना के पीने में ज्यादा, मतलब जो भी चीज है अपने आप करके यूज करने में ज्यादा मजा आता है। सो ये जो बबल्स हो रहे हैं ना, दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड एस्केपिंग द कॉफी। सो इसे ब्लूमिंग फेज ओके। कहते हैं। So you let it bloom for say 30 seconds and ओके। you continuously monitor the scale. So हम लोगों ने 20 ग्राम कॉफी ली है तो we're gonna use 300 grams of water. And once the bubbles stop, आप धीरे धीरे just try and pour 300 grams of water. This is a very slow process. तो मेरा जैसे रूटीन है कि मैं सुबह उठता हूँ, जैसे मैच डे होता है या प्रैक्टिस डे होता है तो मैं सुबह उठता हूँ, अपनी कॉफ़ी बनाता हूँ, फिर आई ट्राई एंड रीड समथिंग, क्योंकि मुझे सुबह उठ के जल्दी चीज़ें करनी अच्छी नहीं लगती। तो अगर जैसे मुझे 7 बजे ग्राउंड पे जाना है तो मैं 5:30 6 बजे उठूंगा और मैं कॉफ़ी बनाऊंगा, एक आधा पौना घंटा आराम से बैठ के कॉफ़ी पीऊंगा, और कॉफ़ी पीने के बाद ही मैं कुछ कर सकता हूँ। सो जैसे वो मेडिटेशन में कहते हैं ना कि सेंटर योर सेल्फ, तो मेरे लिए ये कॉफी बनाना और कॉफी पीना इज लाइक सेंटरिंग माई सेल्फ। वाह। तो कारिया सिड का भी मैसेज आया, मिस द कॉफी ब्रदर मैन। He's not being able to come here to my house. He's a very good friend. So we have 300 grams of water now.
and you just give it a little stir so everything is evenly brewing, Yeah. and then you wait for it to drip. So yeah, Siddharth is missing my coffee because he's not being able to visit, and yeah, there are not many places. बहुत सारे Hmm. कैफेज नहीं सर्व करते पोर ओवर बिकॉज थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, और कैफेज के लिए लाइक कमर्शियली ये चीज करनी थोड़ी मुश्किल हो जाती है, बट Right. आई थिंक पोर ओवर इज वन ऑफ द क्लीनेस्ट वे यू कैन ड्रिंक योर कॉफी. True. जो फ्लेवर्स वो प्रोड्यूस करता है पोर ओवर मेथड मुझे Hmm. बहुत अच्छा लगता है. सो ये पूरा Harshal, जब ट्रिप हो जाएगा देन विल. yeah. In the meanwhile, Harshal, यश is asking कि आपने डीसी टीम में किस किस को कॉफी पिलाई है, किस प्लेयर्स को पिलाई है? डीसी टीम में करंटली तो किसको पिलाई है मैंने, सपोर्ट स्टाफ में तो सबको काफी लोगों को पिलाई है, पर Hmm. अभी तो सो इस टाइम पे जो टीम में है उनमें से तो किसी को नहीं पिलाई है मैंने, पर जो पहले थे टीम में जो मेरे साथ हरियाणा में ही खेल रहे हैं लड़के, जयंत है, राहुल तेवतिया है, Hmm. हम लोग रेगुलरली ब्रू करते हैं. हमारा ये मतलब दिस इज आवर वे ऑफ गेटिंग टुगेदर एंड टॉकिंग. Right. तो सब रूम में इकट्ठा होते हैं, हम कॉफी बनाते हैं एंड देन वी चैट. मोहित भाई ने एक बात बोली आपके बारे में. उन्होंने कहा कि एक तो आप टाइम बहुत लगाते हो कॉफी बनाने में बिकॉज द प्रोसेस इज सच, बट राइट. और अभी तो कॉफी. हमने ये ग्राइंडिंग का प्रोसेस किया नहीं है, क्योंकि हाँ. ग्राइंडिंग का प्रोसेस इज प्रॉब्ली 15 मिनट लगते हैं मुझे, मैं अगर सबके लिए कॉफी बनाता हूँ तो. ओके. तो मोहित भाई बोल रहे हैं कि हर्षल को कोई भी चीज है ना ऐसे ही नहीं मिली है. ही अर्न्स एवरीथिंग. सो लाइक योर कॉफी, like whatever you are earning in your career, you grind for it. So Yeah. I think that's a good comparison of your life and the way you make coffee. Yeah, it's very nice of him to say that. Yeah, और there's no other way I know, और कोई तरीका आता नहीं है. एंड मुझे मुझे हमेशा लगता है कि यार जो चीज आपको मेहनत करके मिलती है, फेलियर्स के बाद मिलती है, और बहुत सारी डिफिकल्टीज के बाद मिलती है, वो चीज को आप हमेशा ज्यादा वैल्यू करते हो. Mm-hmm. तो आई थिंक मेरी लाइफ में जो भी चीजें हैं दैट आई होल्ड डियर, उनके Mm-hmm. लिए मैं बहुत हार्ड वर्क करता हूँ, एंड आई लव डूइंग दैट. Right. So I think we've proved it. One second. Okay. Yeah, sure. Put it down. Yeah, I'm just going through some questions in the meanwhile. Yeah, go. We'll keep talking. Yeah. So एक क्वेश्चन बहुत रिपीटेडली आ रहा है. Mm-hmm. महिपाल ने कहा था कि प्लीज शेयर योर थॉट्स ऑन अजिंक्य रहाणे. ही इज जॉइनिंग. Share my thoughts in Ajinkya Rahane. Okay. Uh, Ajinkya Rahane is very much like me. Like I've never spoken with him. Uh, I've never had an interaction one on one. कभी मेरी बात नहीं हुई है उनसे. बट जो भी चीजें पढ़ी है उनके बारे में, जो भी चीजें सुनी है उनके बारे में, वो दैट टेल्स मी के बहुत ही ज्यादा प्रोसेस ड्रिवन प्लेयर है, बहुत ही ज्यादा प्रोसेस ड्रिवन बंदा है, और ही लव्स, ही एंजॉयज चैलेंजेस जैसे, और ही बिलीव्स इन हार्ड वर्क. जैसे मैं भी, लाइक वी जस्ट टॉक्ड अबाउट के जो भी चीजें आपको मिलती है अगर वो मेहनत से मिलती है तो आप उसको ज्यादा वैल्यू करते हो. तो राइट. आई थिंक वो सिमिलरिटीज मैं देखता हूँ उनमें. एंड द वे ही बैट्स, ही लुक्स सो, he makes it look so easy. And a lot of people may not know this, but he was my first least wicket. So जब मेरा 50 ओवर का डेब्यू हुआ था गुजरात के लिए, we were playing गुजरात versus Mumbai in Rajkot, and Ajinkya Rahane was my first wicket. Wow. Uh, We didn't know that. yeah. Harshal, Ishan is asking कि
आपका फेवरेट टीममेट कौन है और वर्स्ट रूममेट कौन रहा है आज तक? यार फेवरेट रूममेट कह रहे हो या टीममेट कह रहे हो? टीममेट। टीममेट। या यार ये तो बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है आंसर करने के लिए, बट I really enjoy sharing dressing room with these हरियाणा boys. जयंत हो गया या चहल हो गया, तेवतिया हो गया, चैतन्य हो गया. uh, uh, all these guys are हम लोग एक फ्रीक्वेंसी पे सोचते हैं when it comes to cricket. और इट्स वेरी मोहित हो गया ऑफ कोर्स, बिकॉज मोहित और मैंने मोहित वॉज द कैप्टन और मैं वाइस कैप्टन था, तो हम लोगों ने क्रिकेट के बारे में भी बहुत बात करी है. तो इन लोगों के साथ मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, ऑन द फील्ड एज वेल एज ऑफ द फील्ड. तो आई रियली एंजॉय बीइंग ऑन द फील्ड विद दीज गाइस. राइट. और यश इज आस्किंग हाउ. Coffee is ready, by the way. Oh, the coffee is ready here as well, so Yes. Enjoy. Cheers. cheers bro. यश इज आस्किंग आपका ईशांत और रबाडा के साथ बॉन्डिंग कैसा रहा लास्ट सीजन? लास्ट सीजन अनफॉर्चुनेटली मैं ज्यादा टाइम था नहीं टीम के साथ, बट ईशांत से दो तीन चीजों के बारे में मैंने बात करी थी. ईशांत का भी करियर जैसे रहा है, ही बर्स्ट ऑन टू द सीन एंड देन बीच में बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज लोग कर रहे थे कि भाई he's not being able to pick up wickets in the test cricket, and then the way he came back, the way he remodeled himself, or that was very inspiring to me. And now the way he bowls, especially when the ball swings, he's literally unplayable. Yeah. And with KG, I think KG is a very shy person, and so am I. So like we haven't talked a lot about things, but like even looking at him, the way he approaches the game, बहुत ही aggressive है, और he takes a lot of pride in his game. So बड़ा fascinating लगता है, बड़ा inspiring लगता है when you are sharing the field with him. Right. And from that, let's talk a bit about last season. It wasn't a long season for you, unfortunately, but still, I mean, you were there for a considerable time. तो आपको सबसे ज़्यादा last season में क्या difference feel हुआ था compared to a season before that? Right. I think the season before that also, even though we finished 8th on the table, मैं किसी से बात कर रहा था, I don't remember who it was. I told them that अगर ये टीम का कोर यही रहता है ना, तो we're gonna do very very well next year. क्योंकि मतलब जैसे बैलेंस बना हुआ था लास्ट ईयर टीम का, हर एक क्या कहते हैं, हर एक स्पॉट पे वी हैड वेरी वेरी केपेबल प्लेयर्स, और हमेशा कहीं ना कोई स्लैक पिकअप करता था. जैसे कोई एक बंदा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो somebody else would step up. So वो जो टीम का कॉम्बिनेशन बना हुआ था कि like every time the team was in a difficult situation, somebody stepped up and pulled us out. Right. So वो चीज आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट है अगर आपको ट्रॉफी जीतनी है. और आई थिंक लास्ट ईयर हम एक गेम जो सीएसके के अगेंस्ट बड़े मार्जिन से हारे, दैट वाज द ओनली डिफरेंस इन माय ओपिनियन बिटवीन अस लूजिंग इन द सेमीफाइनल्स एंड प्लेइंग द फाइनल्स. अगर वो मैच हम इतने बड़े मार्जिन से नहीं हारते तो हमारा नेट रन रेट बेटर होता है, एंड वी वुड हैव गॉटन 2 chances टू रीच द फाइनल्स, और हम डेफिनेटली पहुंच सकते थे उस टाइम पे. और अगर फाइनल में आप पहुंचते हो तो इट्स ऑलवेज अ 50-50 गेम. तो आई थिंक हमारी ट्रॉफी सेमीफाइनल फिनिश करने में और ट्रॉफी जीतने में मेरे हिसाब से बहुत छोटा मार्जिन रह गया था लास्ट ईयर. ट्रू. तो हर्षल, यू स्पोक अबाउट द पोटेंशियल इन द टीम. मतलब जैसे आपने कहा कि लास्ट टू लास्ट सीजन इवन दो वी डिडंट हैव अ ग्रेट सीजन ऑन टू शो ऑन पॉइंट्स टेबल, बट फिर भी वहाँ पे वो स्पार्क्स ऑफ ब्रिलियंस दिखा
पोटेंशियल नजर आया और वी फेल्ट कि अगर वो कोर साथ में रहता है तो दे कैन अचीव ग्रेटर थिंग्स एंड विच दे डिड इन द लास्ट हम्म सीजन. तो हम्म एक क्वेश्चन मेरा ये भी है कि टीम एटमॉस्फेयर ने कितना हेल्प किया. राइट. टीम एटमॉस्फेयर तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि किसी भी टीम में अगर एक अच्छा कल्चर है तो वो टीम हमेशा सक्सेस और फेलियर के साथ अच्छी तरीके से डील करेगी. और राइट. इसमें बहुत बड़ा रोल लीडरशिप का होता है, कैप्टन का होता है बहुत बड़ा रोल, कोचेस का होता है बहुत बड़ा रोल. तो जैसे जिस तरीके से हमने हमारा हमारे हमारा ईथोस सेट था टीम का, कि these are the things that we are focusing on and these are the things we are not worried about. So we are not worried about things that we don't control. We are only worried about how we play the game, how we go and express ourselves. Just give me 1 second. Yeah. Um, yeah. uh, how we go and express ourselves on the field. And जब आप, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि आप जब इन चीजों पे फोकस करते हो, ओनली वरीड अबाउट योर प्रोसेस और जो आप प्रोसेस में चीजें कर सकते हो, एंड यू आर नॉट वरीड अबाउट द रिजल्ट. सो जब ये चीजें एक इथोस बन जाता है तो कभी भी पैनिक नहीं होता ड्रेसिंग रूम में, बिकॉज Hmm. प्रोसेस पे आप जब फोकस करते हो तो जब आप हारते भी हो तो आपको वो प्रोसेस पे ही देखना है कि कहाँ पे हमने गलती करी है, और जब आप Right. उसमें जो चेंजेस लाने हैं नेसेसरी वो चेंजेस ले आते हो, देन यू विल इवेंचुअली डू वेल ऑन द फील्ड. तो Right. एक स्टेबल एटमॉस्फेयर होना बहुत जरूरी है किसी भी टीम में, कि अब जब जीतते हो तो यू आर नॉट ओवर द मून, एंड व्हेन यू लूज यू आर नॉट डाउन इन द डंप्स. राइट हर्षल. और हर्षल जब आपकी इंजरी भी हुई थी पिछले सीजन, फॉर नेक्स्ट फ्यू गेम्स यू वर स्टिल देयर राइट, एंड आफ्टर दैट यू वेंट, आप गोवा चले गए थे. उसके बाद कुछ क्रिकेट राइट. से आपने टाइम ऑफ लिया. तो वो टाइम कैसा था, क्योंकि अभी हम जब लॉकडाउन में भी है तो एक मान लो उसी तरीके का टाइम है कि हमको वी कांट गेट बैक इनटू द एक्शन इन अ वे. तो राइट. सबको रुकना है, पेशेंस दिखानी है. तो हाउ डू यू रिलेट दिस टाइम विद दैट टाइम व्हेन यू वर इंजर्ड. सो दैट वाज ऑब्वियसली अ वेरी डिफिकल्ट फेज. जब मुझे पता चला कि फ्रैक्चर है और इट्स गोना टेक मी 6 वीक्स टू रिकवर, आई न्यू कि अब आईपीएल तो गया है. एंड आई ऑल्सो, जब जब वो ऐसी चीजें होती है तो आपके दिमाग में सबसे पहले ये आता है कि why is it happening to me, like I worked so hard, and this is a huge opportunity. You feel like a huge opportunity has been taken away from you. uh, and that was a difficult time, but at the end of the day you have to accept the fact, it's, I'm not going to go to sleep and wake up next day and it's going to change. It's not going to Right. change, it's a reality. So first of all you have to accept it, and then, like you said, patience. You have to be patient के body अपनी processes करे, things heal, and then you get back into process of coming back, and वही that circle keeps on going. And if you don't have patience, then you are going to go mad. There's no doubt about it. True. Anirudh तो sir is asking, Harshal sir, what are your wedding plans, sir? Please. He's our secretary, Haryana secretary. अच्छा. हाँ. My wedding plans. I don't know, sir. हर्षल, वन मोर थिंग, यू हैव बीन कैप्टनिंग हरियाणा नाउ. तो कैप्टनसी ने आपका परफॉर्मेंस और इम्प्रूव करने में हेल्प की है. आई थिंक मैं इसको ना एक अलग तरीके से देखता था पहले. जब when I was put into the leadership role, I used to think that it I won't be able to handle the pressure of it, because आपको बहुत सारी चीजों पे ध्यान रखना पड़ता है on the field and off the field. But then I realized that if I learn to do it right, it can add a tremendous amount of value to my game as well. क्योंकि आप किसी और को लीड करो ना करो, you have to lead yourself. So if you learn leadership राइट. skills and if you learn to lead yourself well, then then there's a possibility कि आप टीम को भी अच्छे से लीड कर पाओगे.
So my focus has always been setting good examples and focusing on my performance first, and doing the other people first. And yeah, it makes you more responsible because you're not only thinking about your own game, but आप अपनी टीम के बारे में भी सोच रहे हो, आप अपने टीममेट्स के बारे में भी सोच रहे हो. तो एक एक अलग पर्सपेक्टिव से, एक अलग नजरिए से आप चीजों को देखते हो, एंड उसका उसका उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है. जो लोग लीडरशिप रोल्स में रहे नहीं है उनके लिए शायद डिफिकल्ट हो सकता है समझना, बट आई थिंक लीडरशिप इज समथिंग दैट अगर आप अच्छे से करते हो, अगर आप सीखते हो लीडरशिप के प्रिंसिपल्स, आपको पूरी लाइफ वो अच्छे से सर्व कर सकते हैं. Right. Nice. I hope it continues, giving you great results जिस तरीके से Yeah. पिछले सीजन में भी आया. Yeah. Harshal will take couple of light questions before we wrap up our chat. Yeah. एक तो क्वेश्चन ये है कि आजकल आप देख क्या रहे हो, मतलब आर यू बिंज वॉचिंग समथिंग या म्यूजिक, एंड यू हैव अ हैबिट ऑफ रीडिंग आल्सो? Yeah, so I'm definitely reading 3-4 books at the time. Uh, some I'm binge watching The Wire. It's on Hotstar if somebody's not seen it. It's a very slow show, but I love it. And watching only Wire, reading a few books. Music has always been something that music के बिना मेरा काम नहीं चलता. तो एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स, क्योंकि कई बार आप रूटीन में होते हो ना, तो जो गाने आपको अच्छे लगते हैं वही सुनते रहते हो आप. पर जब टाइम मिलता है ना, तो कहीं ना कहीं आप जब बोर हो जाते हो कि यार वही गाने सुन रहा हूँ, तो आप यू गो एंड मेक एन एफर्ट टू एक्सप्लोर न्यू म्यूजिक. तो अभी वो भी कर रहा हूँ. आई फाउंड अ कपल ऑफ बैंड्स दैट आई वांटेड टू लिसन टू फॉर अ व्हाइल, जो अभी शुरू कर रहा हूँ बैंड्स को थोड़ा एक्सप्लोर करना. So have you transitioned from the 70s and 80s music to something which Seven, is 17, 70 and 80s is where I live. Classic rock, that counterculture era is one of the best times was one of the best times for music for sure. But yeah, I've been going back before 70s and after the 70s as well. there's one question. अभिषेक उसर, दिल्ली वाले भैया पूछो ना क्वेश्चंस. अभिषेक, आपका क्वेश्चन मिल नहीं रहा है मेरे को. मैं स्क्रॉल करके ट्राई किया मैंने, पर मिल नहीं रहा है. अगर आप फिर से पूछते हो तो मैं पूछ लूंगा हर्षल को. Somebody's asking Guns N' Roses or Queen. Queen, I think. I like Guns N' Roses as well. क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहे यार. हम 45-50 मिनट से आप सबके आंसर ही दे रहे हैं यहाँ पे. आप पूछिए तो क्वेश्चंस. अभी तो बढ़िया गाली भी लिखी थी किसी ने. गाली गलौज मत किया करो यार. आईपीएल होगा या नहीं पता नहीं यार, हम वेट कर रहे हैं. Roshit is asking, do you feel you can play higher on Delhi lineup like Irfan used to make quick runs? Yeah. I think I can, but that's up to the management to decide. But I think I can play anywhere in the lineup. Harshal, your thoughts about our squad this season, whenever IPL happens, suppose. Like I said, अभी जो मैंने बोला था कि जो ब्रिलियंट बैलेंस था लास्ट ईयर, अब इस साल डिफरेंस क्या है कि वो ब्रिलियंट बैलेंस में ही हमारे पास इतने सारे ऑप्शन है कि अगर एक प्लेयर किसी रीजन से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है या इंजर्ड हो जाता है, तो हमारे पास ऑलरेडी दो दो ऑप्शन है हर एक स्पॉट के लिए. और अगर हमारे टॉप 5 देखोगे आप बैटिंग लाइनअप में, तो लाइक स्टार्स ऑफ इंडियन टीम एट द मोमेंट, और इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग टॉप 5 आई थिंक बहुत कम टीमों में है. Right. तो आई एम वेरी लाइक
जब आईपीएल शुरू होने वाला था टाइम पे, तब भी मैंने यही बोला था कि आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड दिस ईयर, एंड अभी भी मुझे वो एक्साइटमेंट है. आई थिंक इट्स व्हेनेवर इट हैपेंस इट्स गोना बी अ वेरी गुड ईयर फॉर अस. Right. Harshal, we'll take one last question from Prathamesh. He's asking, what's your favorite IPL memory? What's my favorite IPL memory? I think so far, uh, mm, if I had to only pick one, I would pick getting Sachin Tendulkar out. Uh, because like the first year I started playing professionally and my first year in IPL, और I had no expectations. मुझे तो पता भी नहीं था कि expect क्या करना है सीजन से. I didn't even know what IPL was when I played. And उस टाइम पे सचिन तेंदुलकर को आउट किया था मैंने, कॉट एंड बोल्ड. एंड देन पीपल, जब मैं बाहर निकला मैच के बाद, तो लोगों ने पूछना शुरू कर दिया, हाउ डिड इट फील. लाइक मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला कि मैंने सचिन तेंदुलकर को आउट किया. उसके बाद मुझे वो चीज रजिस्टर हुई कि भाई, मतलब आई बहुत, इट्स अ बिग थिंग टू गेट सचिन तेंदुलकर आउट यार, कम ऑन. So it अच्छा. registered very late, but yeah, it's a fond memory I have. वाह. हर्षल, एक और क्वेश्चन आ रहा है कि इट्स अबाउट विराट कोहली. सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस प्लेइंग अंडर हिम? I learned a lot of things from him. मुझे मतलब जो भी हाई परफॉर्मेंस होते हैं, जो भी पीपल हु आर डूइंग रियली वेल इन द फील्ड, आई लव स्टडीइंग देम. सो जब मैं विराट के अंडर खेल रहा था 6 साल आरसीबी के लिए, तभी भी मैं व्हेनेवर आई यूज्ड टू बी अराउंड हिम, मैं देखता था कि हाउ ही गोज अबाउट हिज बिजनेस. और अगर दो तीन चीजें कोई मैंने उससे सीखी है तो इज वर्क एथिक. देर इज नो ऑप्शन फॉर वर्क एथिक. अगर आपका वर्क एथिक अच्छा नहीं है, देर इज नो वे यू कैन सक्सीड कंटिन्यूअसली. दूसरी चीज, the way he projects confidence when he's doing well and when he's not doing well. Where बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. लोग कहते हैं कि फेक इट टिल यू मेक इट. वो चीज मैंने सीखी है विराट से. जस्ट हिज ओवरऑल, हाउ passionate he is about everything in life. Like किसी नॉर्मल बात, ऑफ टॉपिक बात पे भी आप कॉन्वर्सेशन कर रहे होगे तो he'll always be opinionated, he'll always be passionate about that conversation. I was quite I was not unfit, but I was fat. I had quite a bit of body fat. So he used to tease me about that, and that sort of fueled the fire in me. कि भाई यार ऐसे तो थोड़ी ना चलेगा. He used to tell me कि यार प्रोफेशनल क्रिकेटर है, पेट है, कैसे चलेगा. एंड दैट वो चीज थोड़ी लग गई मुझे, एंड देन आई स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ माय डाइट मोर एंड मोर. वाह. जस्ट मिनट, वी आर अबाउट टू क्लोज, बट क्वेश्चंस अभी काफी सारे आ रहे हैं. वैसे अंकुश बोल रहे हैं कि हर्षल भाई बिग फैन. थैंक्स मैन, थैंक यू. शिवराज कह रहे हैं कि आई एम शिवराज और मैं आपके साथ प्रैक्टिस करता था SGVP में. अच्छा, नाइस. Dhruv is asking, how disappointed are you that you can't get onto the field right when you were absolutely in the peak of your game? Good Yeah, question. good question. Dhruv used to play for Haryana, and he is one of the best coaches right now in Haryana. Um so very frustrating, to be very honest.
शुरू के जब ये लॉकडाउन हुआ है और जब ये क्लियर हुआ कि आईपीएल लेट होने वाला है या पोस्टपोन हो गया इंडेफिनिटली, तो द फर्स्ट थॉट वाज यही चीज एग्जैक्टली कि मैं अपने पीक पे हूँ एंड आई एम नॉट बीइंग एबल टू गो आउट देयर ऑन द फील्ड एंड शो व्हाट आई कैन डू राइट नाउ. तो बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग था, बट अगेन लाइक आई सेड इन टर्म्स ऑफ इंजरी, यू हैव टू इवेंचुअली एक्सेप्ट द फैक्ट दैट it is real and there's nothing you can do about it, and then you once you make your peace with that, then आप सोचना शुरू करते हो कि भाई ये टाइम है मेरे पास, so how do I utilize this time more and more, or when I come out of this lockdown, how better do I want to be. So initially difficult होता है of course acceptance, पर without that acceptance वो चीज कहीं पे you can't move forward without accepting the fact. Right. And now you have to be in that frame of mind that thankfully if IPL comes back very soon, you have to be ready for it. Absolutely. Like again, it would be a better thing for me if I was prepared and IPL didn't happen than the other way around. So it's always good to be prepared and thinking as if the IPL is going to happen very soon. Right. Harshal, a final message for all our fans to stay home, take care of themselves. What Yeah. do you want to say? Yeah, stay home, take care of yourself, take care of your family, try and add something to your personality, try and learn something new, and whatever you need to sort out, this is the time to sort out, because इतना free time I think किसी को life में कभी मिलने वाला नहीं है, I assume. So just enjoy this time off. And also I also want to say that if you feel frustrated or if you feel अगर आप परेशान हो कि बाहर नहीं जा पा रहे हो या कुछ कर नहीं पा रहे हो, तो वो चीज़ नॉर्मल है, वो परेशानी नॉर्मल है, एंड ऑल ऑफ अस आर डीलिंग विद दैट. सो वो चीज़ को एक्सेप्ट करो एंड देन थिंक कि आप क्या कर सकते हो इसके बाद. हाउ डू आई यूज दिस टाइम well and come out of it as a better person. Right. Okay, Harshal, we'll close. लेकिन एक फैन है थोड़ा गुस्सा लग रहे हैं, वो UV Official 17 उनका हैंडल है, तो वो पूछ रहे थे, आपको टिप्स भी पूछ रहे थे फास्ट बॉलिंग के लिए. तो आप lastly if you could answer his comment and then we can close this session. What was his question? Sorry. He was asking for tips to increase speed and एक मिनट, I am a all-rounder, bowling speed कैसे बढ़ेगी? जैसे पहले बोला मैंने, अगर आपने पूरा देखा है तो सबसे जेनेरिक चीज है जो सबके लिए अप्लाई होती है, वो है फिटनेस पे काम करो. इफ यू रन वेल यू बोल वेल. मेरी एक सिंपल फिलॉसफी है कि अगर आप अच्छा भागते हो तो आप अच्छा बॉल डाल पाओगे, क्योंकि भागना सबसे इम्पोर्टेंट चीज है मेरे हिसाब से बॉलिंग में. तो अगर आपकी रनिंग टेक्निक में कोई इश्यूज है या आप इतने फिट नहीं हो, तो उन चीज़ों पे अगर आप काम करोगे तो डेफिनेटली आप 4 से 5 किलोमीटर पेस में ऐड कर सकते हो. Okay, we can wind up the session for now and we'll look forward to connect again very soon. Thank you so much, bro, for being here and answering so many questions. Mate. Thank you. Thanks a lot, bro. Talk soon. Thank you guys for joining in. Bye. Bye.